from this syllabus only the question paper will be designed. So first, maybe what is database concept, what is MySQL, what is its need of DBMS or RDBMS, what is the difference between DBMS and RDBMS. So these type of questions, theory questions will be asked. So just go through the syllabus. Each and every topic should be clear to you. So let us start with the material, the study material I will open and I will start with it. Okay. MySQL basic database concept. Now already I have shown you the question papers pattern. In this question paper pattern, you will get all the definitions, all the these questions are there. Yes. Now here you will get theory questions like explain or define the following terms. So all these definitions, DDL, what is DDL, what is DML, what is DBMS, what is RDBMS. So these type of questions will be there, 1 mark, 2 mark. I will share with you all the question papers. So let us start with our content. Now what is database? What is data? Data already you know. Raw facts and figures which are useful to an organization. We cannot take decisions on the basis of data. Any data, maybe your name, your marks, all these are data, but it is not giving any information. Your name is not giving any information. Your mark is not giving any information. Now next is your information. Well processed data is called information. We can take decisions on the basis of information. Now if I give you the information that this year in class 11th IP this student has stopped. I have used your name, your marks and the other information, and now you are getting some information. So what is the difference between data and information? Data are raw facts and figures which are unprocessed, and information are the processed data, and it gives it this is meaningful information, whereas data is meaningless, only the data are there. Now whenever you will study, try to find out 2 to 4 difference between all the comparative topics, so that in exam if they ask you the difference between data and information, or the tuple and attribute, or cardinality and degree, so whenever you are studying just compare these and then study. ठीक है, तो इसमें हो गया डिफरेंस. डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मीनिंगलेस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है. और इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा, मीनिंगफुल, and it gives you information. We can take decision on the basis of information. Next is your field, set of characters that represent specific data elements. Now you will see that your all the class English subject marks. Now you will find that the field name I will give as English marks, and then all the marks I will store in it. Record, our collection of fields is called a record. A record can have fields of different data types. File is next topic. Now record means your record. Suppose your name, your marks of 5 subjects, your total and percentage, एक complete जो row होता है उसको record बोलेंगे. तो उसमें अलग अलग डेटाज होते हैं. जैसे नेम जो होता है वो कैरेक्टर होता है, मार्क्स जो होता है it is integer or float. So it contains different data types, and it is collection of different type of datas. Next is file. Collection of similar types of records is called a file. Suppose student file I am making, and in that all the student details are there. So similar type of records or rows are there. Next, table. Collection of rows and columns that contains useful data information is called a table. A table generally refers to the passive entity which is kept in secondary storage device. So here the collection of rows and columns that contains the data or information is called table. Next, database. Collection of logically related data along with its description is termed as database. So which is based on data and all are logically related datas. Next, relation. Relation, collection of rows and columns generally refers to an active entity
on which we can perform various operations. It is also known as table. जिसमें रिलेटेड, जिस टेबल में रिलेटेड डेटाज रहते हैं, जैसे स्टूडेंट रिलेशन है, एडमिशन रिलेशन है, लाइब्रेरी रिलेशन है, तो वो एक टेबल के फॉर्म में रहता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, लेकिन उसके जो डेटास होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, इसको रिलेशन, उसी टेबल को हम रिलेशन बोलेंगे. बाकी जो नॉर्मल हम पहले टेबल बनाते थे उसमें जरूरी नहीं होता था कि सारे रिलेटेड डेटास रहे. Now next is tuple attribute. Now I will mark the questions which will come in your board exam or your this PT2 you can tell, or annual exams. What is a tuple? What is attribute? These questions will come in exam. Now tuples are the rows in a relation. So a row in a relation is called tuple. It is also known as records. Now you can give the example like in a student relation, the first roll number, complete data record is there. So that is called, the rows are called the tuple. Next, attributes are the columns in a relation. So a column in a relation is an attribute. It is also referred as field or data item. So you will see at the top field name will be given to you, like student name, that is a field name, and below that all the name of the students. So these columns are called attributes in RDBMS. Next, degree. Number of attributes in a relation is called degree of a relation. मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिग्री बोलेंगे. इसका दो क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन आता है, एक टेबल दिया रहता है, वन टेबल विल बी गिवन टू यू एंड दे विल आस्क यू दैट व्हाट इज द डिग्री एंड व्हाट इज द कार्डिनलिटी. सो यू विल काउंट हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, दैट यू विल राइट इन डिग्री. And in rows, the field name is not counted, only the records are counted. शुरू में ऊपर में field name दिया रहता है, roll number, name, मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मार्क्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, टोटल, परसेंटेज, इसको हम नहीं काउंट करते हैं. इसके बाद जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम काउंट करते हैं. मैं टेबल दिखा दूंगी बाद में तो कैसे काउंट करना है. तो कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन. टोटल नंबर ऑफ रोज को हम कार्डिनलिटी बोलेंगे. तो इसका नोट्स बना लोगे. अब इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन tuple and attribute, difference between degree and cardinality. फिर कीज, ये कीज के भी डिफरेंस आते हैं. ठीक है, अब इसके डिफरेंस को हम लोग एक जगह लिखना शुरू करते हैं ताकि हम लोग को बाद में प्रॉब्लम न हो. तो एक में न्यू फाइल डिफरेंस ऑफ एसक्यूएल, सारे डिफरेंसेस को हम लोग डिफरेंस माई एसक्यूएल में जितने भी डिफरेंसेस उसको हम शुरू करते हैं. सबसे पहला जो रहेगा वो हम लोग माई एसक्यूएल कर देते हैं, या फिर डीबीएमएस, आरडीबीएमएस. ये नॉर्मली उतना पूछते नहीं हैं, जो नहीं उतना पूछते हैं डीबीएमएस, फिर आरडीबीएमएस. आज हम लोग अभी टपल और एट्रीब्यूट लिखेंगे और टपल एट्रीब्यूट लिखेंगे और डिग्री कार्डिनलिटी लिखेंगे. कॉपी में लिखते रहो कार्डिनलिटी. क्लियर? तो ये हम लोग अब डिफरेंस लिखना शुरू करते हैं. अब इसमें फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे हम लोग एक फर्स्ट डिफरेंस के लिए 1 2 3 4 डाल देते हैं. ठीक है, तो सबके 4 डिफरेंस हम कोशिश करेंगे. अभी 2 जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, बाद में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे. टपल किसको बोलते हैं? रोज या रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन. तो टपल्स आर द रोज ऑफ अ रिलेशन. और एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं? कॉलम्स of a relation. एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? किसको रोज बोलेंगे? सपोज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, जो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 का पूरा रिकॉर्ड,
तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, मीन्स अलग अलग डेटा टाइप्स, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स होते हैं। एक रिकॉर्ड में कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स, कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं इसमें, और उसमें सेम डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एक कॉलम मतलब खाली रोल नंबर, खाली नेम, ठीक है, नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एनी वन कॉलम। तो इसमें सपोज नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, सारे कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स है, खाली नेम्स ही नहीं, उसमें रोल नंबर हो, या तो एक एक कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और इसमें सेम डेटा टाइप होता है। तो होमोजीनियस डेटा टाइप्स, होमोजीनियस डेटा टाइप्स। ठीक है, और कोई डिफरेंस कोई बोल सकता है? सपोज तुम्हारे क्लास में आईपी स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं? टोटल 32 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टपल रहेगा, कितने टपल्स होंगे उसमें? 32 टपल्स होंगे, क्योंकि जब हम लोग डिग्री कार्डिनलिटी करेंगे, कार्डिनलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज और टपल्स। तो उसको जब हम लोग लिखेंगे तब इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ था? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। सबसे पहला डिफरेंस हमेशा हम डेफिनेशन लिखते हैं, और इसमें क्या था कि नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। ठीक है, now if a table is given to you, and in that table suppose 32 records, 32 student records are there, so 32 tuple will be there and cardinality will be 32, that is total number of rows will be 32. Okay, so that example you can give here. Then the other difference is a table you can make here, a small table, and then because a table will be given to you, एक टेबल दिया रहेगा और उसमें पूछेंगे कि इसका कार्डिनलिटी कितना है, डिग्री कितना है। तो मैं एक अभी टेबल बना दे रही हूँ और उसमें वैल्यूज डाल के, सपोज रोल नंबर, तो ये डिफरेंस में भी हम डाल सकते हैं, रोल नंबर, नेम, 3 subject marks, English, IP, and it can be anything. Suppose you are writing here physics or accounts. ठीक है, अब इसमें रोल नंबर आ गए सारे, नेम आ गया इसमें, मार्क्स। ठीक है, अब इसमें जब पूछा जाएगा कि कितने टपल से, 4 टपल से, इसमें डेटास जो है, रिकॉर्ड्स जो है 4 स्टूडेंट के हैं, तो टपल कितने हो जाएंगे? 4। और कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। सपोज ये स्टूडेंट टेबल है, इसको हम रिलेशन बोलते हैं क्योंकि ऑल द रिलेटेड डेटा आर स्टोर्ड। तो स्टूडेंट रिलेशन में यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखोगे, एग्जाम्पल इन स्टूडेंट रिलेशन द कार्डिनलिटी इज 4 as 4 records are there. तो कार्डिनलिटी इज 4 इन स्टूडेंट टेबल, एंड कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम्स में 5 आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम 5 लिख रहे हैं, 5 कॉलम्स आर देयर, सो 5 इज योर डिग्री कॉलम्स को बोलते हैं। आगे समझ में कैसे डिफरेंसेस को लिखना है? टेबल बना सकते हो, बना के उसके बाद इसमें डेटास डाल के, तो ये जो डिफरेंसेस है इसको हम लोग
एक जगह सेव करते जाएंगे. इसमें स्टूडेंट्स लोग विल बी अलाउड टू make changes, and finally some notes we can create it. Like suppose one student, I will give you all the topics. अब एक स्टूडेंट जैसे उनको अगर RDBMS DBMS का आता है तो उसमें डाल दोगे, और वो हम लोग गूगल शीट बना के मैं डाल दूंगी, ताकि उसमें जो भी बच्चा चेंज कर रहा है वो सारे स्टूडेंट्स को दिखे. तो उसमें बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, प्लस दूसरे स्टूडेंट का किसी टॉपिक में अगर होल्ड है तो वो हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से डिफरेंसेस सारे मिल जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, so this will be ours, so that's why I have given you. Now next will be your primary key, foreign key, candidate key, alternate key. किसी भी एक को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डिफाइन प्राइमरी की पूछ सकते हैं, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, या फिर दो के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की का, प्राइमरी की कैंडिडेट की का, ऑल्टरनेट की का, किसी भी इन चारों का कोई भी कॉम्बिनेशन में डिफरेंस आ सकता है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे के डिफरेंसेस हम एक जगह लिख के, प्राइमरी की अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको शेयर कर दूंगी, अभी मैं खाली समझा दे रही हूँ. प्राइमरी की वर्सेस कैंडिडेट की. नेक्स्ट विल बी योर चार सब में हम लोग चार अभी डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट विल बी योर कैंडिडेट वर्सेस ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट की वर्सेस कैंडिडेट की. देन फॉरेन की वर्सेस प्राइमरी की, फॉरेन की प्राइमरी की. इसमें और भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सपोज फॉरेन की वर्सेस ऑल्टरनेट की, फॉरेन की वर्सेस कैंडिडेट कीज, वैसे ही प्राइमरी की वर्सेस ऑल्टरनेट की. प्राइमरी की वर्सेस ऑल्टरनेट की एक पेपर में आया है, इसको भी लिख देते हैं, प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की का डिफरेंस. ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. तो चलो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंस लिखना शुरू करेंगे. प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट विच यूनिकली सर्चेस टपल्स इन अ रिलेशन. कोई भी रिकॉर्ड को सर्च करना है, स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स है, मेरे को किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर से सर्च करना है, मैं एडमिशन नंबर डाल के उसको सर्च कर सकती हूँ. सपोज लाखों ट्रेन्स है, मेरे को ट्रेन नंबर डाल के अभी गूगल सर्च करना है कि उसका रनिंग स्टेटस क्या है, तो उस ट्रेन नंबर का रनिंग स्टेटस अभी दिखा देगा, या प्लस अदर डिटेल्स ऑल्सो इट विल शो. सो प्राइमरी की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट विच इज यूज टू सर्च एनी रिकॉर्ड और टपल इन अ रिलेशन. किसी भी टेबल में हमको जब सर्च करना होता है, हम प्राइमरी की से सर्च करते हैं. नॉर्मली जैसे नाम से हम सर्च करते नहीं है, नॉर्मली यूनिक होता है, उसके बाद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. जैसे क्लास में मैं जाके नाम से बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि सपोज मैंने क्लास में बोला कि या किसी को मैंने बोला कि जाओ 11th से यमन को बुला के लेकर आओ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पूरे क्लास 11th में एक ही उसी नाम का स्टूडेंट है. अगर दो स्टूडेंट्स होते हैं सेम नेम के, देन आई विल नॉट टेल यू दैट कॉल यमन, अगर मुझे पता है तो वो क्या करेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा. वैसे ही कंप्यूटर भी कंफ्यूज, या दोनों नाम को शो करेगा. तो जब सर्च करना होता है, हम जो यूनिक कॉलम यूनिक डेटा वाला कॉलम रहता है, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, उसमें यूनिक और नॉट नल वैल्यूज रहता है, हम उसी से सर्च करते हैं हमेशा, ठीक है. Primary key is a key that can uniquely identify the tuples or records in a relation. This key can never be duplicated and null. ये इसका मेन डिफरेंस है कि प्राइमरी की में हमेशा यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज ही होते हैं. ये याद रखना है. कोशिश करोगे जो एनसीईआरटी बुक में शेयर कर रही हूँ उसी का डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशंस दिया है ये एक्सप्लेनेशन का दिया हुआ है, और जो मैंने एनसीईआरटी बुक शेयर किया है उसके पीछे जो डेफिनेशन है उसी को लिखोगे आंसर कॉपी में. नेक्स्ट इज योर फॉरेन की. फॉरेन की हम दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए, या रिकॉर्ड्स कोई भी इंफॉर्मेशन हमको दूसरे टेबल से चाहिए, तब हम लोग फॉरेन की यूज करते हैं. नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल एक्टिंग एज प्राइमरी की इन सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की इन इट्स करंट टेबल. हमेशा वो दूसरा जो फॉरेन टेबल होता है, सेकेंड टेबल, वो उसका प्राइमरी की होता है.
This key is used to enforce referential integrity in RDBMS. Referential integrity क्या होता है? जब हमको उसका कोई भी रेफरेंस देखकर उसका जो दूसरा इंफॉर्मेशन हमको दूसरे टेबल से कलेक्ट करना होता है, तब हम लोग फॉरेन की को यूज करते हैं. RDBMS क्या है? रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मीन्स जो भी टेबल या डेटाबेसेस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसमें हमको जैसे सपोज लाइब्रेरी के बुक्स हमने सबमिट किए हैं कि नहीं, वो एडमिशन नंबर या क्लास के रोल नंबर से अगर है सबमिटेड, तो हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे कि बिफोर taking TC or before leaving the school, all the books you have submitted back to the library. So the second table will be library table, and the first table may be your attendance table or maybe your admission table, from where we will collect the admission number or your roll numbers, and then we will give the information that how many books you haven't submitted till now. So this is your foreign key. Now candidate key can serve as primary key. Candidate key किसको बोलते हैं? जिसमें भी यूनिक और नॉट नल वैल्यूज होते हैं और वो प्राइमरी की बन सकते हैं. So attributes of a table which can serve as a primary key are called candidate key, जिसमें यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज होते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि नेम से भी अगर हम सर्च करना चाहे स्कूल में तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है, सबका मेरे को रोल नंबर और एडमिशन नंबर तो नहीं पता. तो नॉर्मली हम कैसे कॉल करते हैं, कैसे सर्च करते हैं? रियल लाइफ में हम कैसे सर्च करते हैं? नाम से सर्च करते हैं. मैं नाम से कॉल करूंगी अभी तुम लोग को, लेकिन कंप्यूटर इज यूजिंग द यूनिक नंबर्स एंड it is using the primary key. Suppose attendance computer wants to take, then computer will call the roll numbers and will take the attendance. We are also calling the roll numbers, but it should be easy for us. Next, alternate key किसको बोलते हैं? जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन सके उसको alternate keys बोलते हैं. नॉर्मली एक को हमने प्राइमरी की बना दिया और बाकी सभी में, सपोज सभी के पास यूनिक ईमेल आईडी है, यूनिक एड्रेस, यूनिक फोन नंबर, एंड all are filled in that table. So I can search with any column. मेरे को अगर सर्च करना है किसी स्टूडेंट को तो मैं उनके ईमेल आईडी से भी सर्च कर सकती हूँ, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर हैविंग देयर यूनिक ईमेल आईडी, आधार नंबर. बट I have made the admission number as primary key, so all the other columns which contains unique and not null values which could not become the primary key are called alternate keys. अब ये डिफरेंस समझ में आ गया. अब हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंस लिखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे? पहला डिफरेंस हमेशा हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो पहला डिफरेंस हम लोग डेफिनेशन डाल देंगे. प्राइमरी की किसको बोलते हैं? ऑल द नॉन की एट्रीब्यूट्स विच यूनिकली सर्चेस टपल्स इन अ रिलेशन. तो यूनिकली क्या हो रहा है स्पेलिंग? यूनिकली सर्चेस टपल्स इन अ रिलेशन. ये इसका डेफिनेशन है. कैंडिडेट की का डेफिनेशन क्या है? कैंडिडेट कीज आर द नॉन की एट्रीब्यूट्स विच कैन सर्व एज प्राइमरी की. जो प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट्स हैं उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं. ये इसका डेफिनेशन हो गया. अब सेकेंड डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी की में भी यूनिक एंड नॉट नल होता है, कैंडिडेट की में भी यूनिक एंड नॉट नल होता है, तो उसको तो हम सिमिलैरिटी हो गया, उसको तो हम नहीं लिख सकते. तो सेकेंड डिफरेंस हम ये लिखेंगे कि प्राइमरी की जो होता है वो कैंडिडेट की के ही कोई एक आध कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं. बाकी जो होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी की इक्वल्स टू कैंडिडेट की माइनस ऑल्टरनेट की. मतलब ऑल्टरनेट कीज को अगर हम छोड़ दे तो सपोज 5 कैंडिडेट कीज है, उसमें से एक अगर प्राइमरी की है तो बाकी के जो होते हैं 4 वो ऑल्टरनेट कीज होते हैं. तो नंबर ऑफ प्राइमरी की इज नॉर्मली लेस देन नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज इफ ऑल कंटेन्स यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज. और कैंडिडेट कीज हमेशा प्राइमरी की से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितने सपोज ऑल द कॉलम्स आर कंटेनिंग यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज, देन ऑल कॉलम्स आर
कैंडिडेट कीज। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि इफ ऑल कॉलम्स, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा शॉर्ट में लिखने के लिए, मैं इसको तो शॉर्ट के लिए तुम लोग के लिए छोड़ दे रही हूँ। शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, मैं खाली समझा दे रही हूँ। इसमें लिख सकते हो कि व्हेन ऑल कॉलम्स कंटेन यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज देन ओनली वन आई विल मेक द प्राइमरी की एंड द रेस्ट ऑल आर कैंडिडेट टू बिकम द प्राइमरी की। और एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे, सपोज एग्जाम्पल में हम क्लास का एडमिशन नंबर लिख देते हैं, एडमिशन नंबर, या फिर हम रोल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट कीज में एग्जाम्पल में हम सारे एडमिशन नंबर, रोल नंबर तो है ही, प्लस यूनिक नेम, अगर सारे बच्चों के यूनिक क्लास में नेम्स है, फिर ईमेल आईडी सबका यूनिक है। ठीक है, फिर आधार नंबर सबका यूनिक है, आधार नंबर स्कूल में आधार नंबर सबका यूनिक है, लेकिन मैं किससे सर्च कर रही हूँ, तुम लोग के एडमिशन नंबर, रोल नंबर से। तो ये ऑल आर कैंडिडेट टू बिकम, इसमें वो भी आ जाएगा, रोल नंबर और एडमिशन नंबर भी आ जाएगा, ये दोनों भी आ जाएंगे, रोल नंबर। ये हो गया हमारा कैंडिडेट की। ठीक है, बाकी के डिफरेंसेस पहले एक बार मैं छोड़ दे रही हूँ तुम्हारे लिए, फिर बाद में मैं सारे डिफरेंसेस एक जगह है मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, अब ऑल्टरनेट कीज किसको बोलते हैं, द कैंडिडेट कीज विच कुड नॉट बिकम द प्राइमरी की, दोज आर योर ऑल्टरनेट कीज। और कैंडिडेट कीज का तो ऑलरेडी मिल ही गया है, दो डिफरेंस तो मिल ही गया है, तो मैं इसको यहाँ पे सेम पेस्ट कर दे रही हूँ। प्राइमरी की का भी जो मिल गया है उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, प्राइमरी की में सेम डिफरेंस को मैं भी पेस्ट कर दे रही हूँ। बाकी डिफरेंसेस क्या कर सकते हो, जैसे फॉरेन की और प्राइमरी की में, फॉरेन की कैन कंटेन यूनिक, कैन कंटेन रिडंडेंट वैल्यूज, that is always it is not unique, and also it can contain the null values। तो ये हम लोग डाल सकते हैं can contain, contains, can contain ही contains redundant या repeated values, तो redundant और repeated values, repeated values। और यहाँ पे हम cannot contain, तो इसमें क्या रहता है, यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज, यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज, नॉट नल को हम नीचे डाल देते हैं। ठीक है, इसमें नल वैल्यूज अलाउड है, कैन कंटेन नल वैल्यूज, कैन कंटेन नल वैल्यूज, और इसमें नॉट नल वैल्यूज, contains not null values। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंसेस लिखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉरेन की किसको बोलते हैं, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू जॉइन द टू टेबल, एट्रीब्यूट्स, एंड इट इज ऑलवेज द प्राइमरी की ऑफ द सेकेंड टेबल। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स यूज टू, या तो ज्वाइन द टू टेबल बोल सकते हो, या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में जब डेटास को कलेक्ट करने हैं, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने हैं, तो यूज टू जॉइन टू टेबल्स। उसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज ऑलवेज द प्राइमरी की ऑफ द सेकेंड टेबल, प्राइमरी की ऑफ फॉरेन टेबल बोल सकते हो, या चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं, सेकेंड टेबल। जो फर्स्ट टेबल होता है उसको हम मेन टेबल, प्राइमरी टेबल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रैप कर देती हूँ टेक्स्ट को, ताकि हमको पूरा दिख जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉरेन की। अब इसमें एग्जाम्पल में लिखोगे, सपोज कोर्स टेबल से हमको स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन करना है, तो कोर्स नंबर जो हो जाएगा, फर्स्ट टेबल का कोर्स नंबर, सेकेंड टेबल इज कोर्स टेबल। ठीक है, तो कोर्स नंबर
of student and course table of student and course table is used to join the two table. इसके एग्जाम्पल को और भी हम टेबल बना के भी हम एग्जाम्पल और अच्छे से समझा सकते हैं. ठीक है, तो सपोज एक टेबल दिया है जिसमें हमने यहाँ पे एक कॉलम डाल दिया है कोर्स नंबर, और एक कोर्स टेबल है, दूसरा टेबल है कोर्स टेबल, कोर्स रिलेशन. इसमें हमने कोर्स नंबर, कोर्स का नाम, कोर्स नंबर, कौन सा कोर्स कर रहे हो, सपोज कॉलेज में जाने के बाद BCA, BBA, कौन सा कोर्स कर रहे हो, BCom, BA, BSc. ठीक है, तो यहाँ पे हम कोर्स नेम डाल दे रहे हैं, और सपोज उसके बारे में डिटेल्स, क्वालिफिकेशन या फिर फीस डाल दे रहे हैं. तो अब हम दो टेबल को कैसे ज्वाइन करेंगे कि उनके मार्क्स के बेसिस में अगर हमको ज्वाइन करना है तो कितना मार्क्स मिला है किस सब्जेक्ट में, सपोज उसके बेसिस पे हमको. तो यहाँ पे कोर्स नंबर में हमने 202 फिर 302 दो कोर्स अभी लिया है. कोर्स का नाम क्या है, BCA कर रहे हैं, और एक BBA ले रहे हैं. फीस उसका डाल देते हैं 9,000 एंड BBA का 8,000. तो अब अगर हमको यहाँ पे कोर्स नंबर दिया हुआ है कि किसको, सपोज यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट राज है, वो BCA कोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे 202 डाल देंगे. और कोई अमित है, उसको उसने भी सपोज BCA कोर्स, तो 202. इला ने BBA कोर्स किया है तो कर रही है, तो 203. एंड ताहा का भी सपोज 303. ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि फीस, ताहा कितना फीस पे कर रही है, तो कैसे पता लगाओगे कि ताहा कौन सा कोर्स कर रही है, 303 का फीस कितना है, 8,000. तो ये होता है जो हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, एक टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, और दूसरा टेबल है हमारे पास कोर्स टेबल. तो ये दो टेबल को हमने ज्वाइन करके फीस को कैलकुलेट करके अभी हमने डिस्प्ले किया. तो ये हम लोग सिलेक्ट क्वेरी से अभी हम लोग करेंगे, एक एक करके ज्वाइन तक करेंगे, और उसके बाद कैसे डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले दिखेगा. आगे समझ में? तो ये मैंने पूरा इनकम्प्लीट छोड़ दिया है. मैं थोड़ा सा ऑल्टरनेट की को बता देती हूँ. द कैंडिडेट कीज विच कुड नॉट बिकम द primary key, which are not the primary keys, are called alternate keys. So candidate keys which could not, which are not primary key are called alternate keys. जैसे क्लास में तुम्हारा नेम, यूनिक नेम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, इससे हम लोग कभी भी स्कूल में हम सर्च नहीं करते. हमेशा रोल नंबर, CBSE बोर्ड रोल नंबर्स या फिर एडमिशन नंबर से हम सर्च करते. तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया है, या फिर ईमेल आईडी लिख दिया है, और आधार, ये स्कूल का मैं आधार नंबर लिख रही हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कॉलेज में आधार नंबर से सर्च हो जाए. मैंने अभी जस्ट एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधार नंबर लिया है. ठीक है. अच्छा, ऑल्टरनेट की इज ऑलवेज लेस देन कैंडिडेट की. क्यों? कैंडिडेट की का एक अगर प्राइमरी की बन गया, बाकी जो बच जाते हैं उसको ऑल्टरनेट की बोलते हैं. तो अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज है तो उस केस में ही ऑल्टरनेट की होगा. अगर टेबल में एक ही कैंडिडेट की है तो वो प्राइमरी की बन गया, तो ऑल्टरनेट की उस टेबल में 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गए सारे डिफरेंसेस. बाकी डिफरेंसेस को लिख के नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेयर करेंगे. फर्स्ट आई एम लिविंग टू यू, एटलीस्ट यू ट्राई टू राइट सम. जरूरी नहीं 4 ही लिखना है. इफ यू नो मोर यू कैन राइट. सपोज आई नो 10 डिफरेंसेस ऑफ दिस, सो आई कैन राइट इट. ठीक है. उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो ये हो गए हमारे चारों कीज. अब नेक्स्ट टॉपिक इज योर different operations and then the types of commands. Now this types of commands is also very important, especially DDL, DML commands.
तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। एक मिनट में थोड़ा सा इसमें मार्कर लगा दूं ताकि दिख जाए अच्छे से। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम 4 टाइप ऑफ कमांड्स हम पढ़ चुके हैं, DDL, DML, TCL एंड DCL। 4 टाइप के कमांड्स हमने SQL में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। DDL क्या है? टेबल स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड होता है उसको DDL बोलते हैं। एग्जाम्पल DDL का कौन सा है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये 3 एग्जाम्पल है DDL के। DML क्या होता है? विच इज यूज टू मैनिपुलेट लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये DML है। अभी CBSE ने एक नया उसमें दिया है, नया मीन्स वो होता है नॉर्मली डेटा क्वेरी लैंग्वेज जिसमें सिलेक्ट को डाला गया। पहले हम लोग सिलेक्ट को DML में ही डाल देते थे, अभी उन्होंने डेटा क्वेरी लैंग्वेज करके उसमें सिलेक्ट डाल दिया है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे हम इसमें। सपोज डेटा 3 नंबर में हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो इसमें हम सिलेक्ट डाल देते हैं एग्जाम्पल। तो सिलेक्ट का पूरा सिलेक्ट करके उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, कंडीशन, और इसके सारे क्लॉज जितने हैं, कौन कौन से क्लॉज है? इन, बिटवीन, देन, लाइक, डिस्टिंक्ट, नॉट इन, तो जितने भी क्लॉज है ये सारे एक एक करके हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और 4th नंबर में हम TCL को रखते हैं, 5th नंबर DCL। इसमें कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट दिया हुआ है। बाकी NCERT बुक में भी इस टाइप से दिया है, मैं NCERT बुक से बाद में दिखा दूंगी। अब इसमें भी डिफरेंसेस क्या होता है? DDL जो टेबल को हम बनाने में या कॉलम्स को ऐड करना, मॉडिफाई करना, रिमूव करना, कॉलम से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, ये सारे DDL। DML क्या होता है? रिकॉर्ड्स, रोज से रिलेटेड होता है। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज तो ये सिलेक्ट, इसका तो डिफरेंस नहीं पता। DDL DML का डिफरेंस हमेशा एग्जाम में आता है, आज हम लोग सारे डिफरेंसेस को एक जगह लिख रहे हैं इसलिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? DDL और DML के डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में क्या क्या डालना है? DDL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? ये टेबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, ये रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्रिएट्स, ऑल्टर्स एंड ड्रॉप्स, जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था? एग्जाम्पल कौन सा होता है इसका? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। पहले हम लोग सिलेक्ट भी लिखते थे, आज अभी CBSE ने उसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज करके सिलेक्ट को अलग कर दिया, तो अभी हम सिलेक्ट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। हाँ, तो इससे हम क्या क्या कर सकते थे? हम टेबल को क्रिएट करना, तो पूरा टेबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता था, रिलेटेड टू टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्रिएट्स अ टेबल स्ट्रक्चर, तो रिलेटेड टू टेबल स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, रिमूव करना, चेंज करना, और इसमें रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, जो टपल्स होते हैं उससे रिलेटेड होता था। तो रिलेटेड टू टपल्स, टू रिकॉर्ड्स और रोज और टपल्स ऑफ अ रिलेशन। इसमें हम ऐड अ न्यू कॉलम, ड्रॉप अ न्यू कॉलम, मॉडिफाई अ न्यू कॉलम कर सकते थे। स्पेलिंग क्यों इतना गड़बड़ हो रहा है? रिलेटेड, ओके। इसमें ऐड
मॉडिफाई एंड ड्रॉप, या डिलीट कर सकते हो कॉलम्स, उसके काम आता है। और इसमें हम लोग मॉडिफाई अपडेट यूज करके द डेटाज ऐड न्यू मॉडिफाई, हाँ इसमें तीनों रोज के लिए होता है। तो मैं यहां से कॉपी करके रोज कर दे रही हूं। ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट्स रिकॉर्ड्स और रोज। ठीक है, रोज से रिलेटेड होता है ये। 4 हो गए डिफरेंस। अभी हम लोग 4 ही लिख रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे, ताकि ज्यादा अगर लिख लोगे तो क्या एग्जाम में अगर एक नहीं याद आ रहा है तो दूसरा याद आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, DDL DML इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। मैं पुराने जितने डिफरेंसेस बाकी बच्चों ने लिखे हैं उसको बाद में मैं शेयर करूंगी। पहले तुम लोग ट्राई करो आज यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी डिटेल में बाकी का करेंगे। ठीक है, आज का तो टाइम हो गया है क्लास का।